So we are doing control plane protection with transit. तो हम कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हैं? ACL with log. So what I'm going to do is R1 is going to ping what? R3. R1 किसको ping करेगा? R3 को. 23.2. So on R1 I'm going to say ping 23.2. ठीक है? Ping 23.2. So for R2 it is what? Transit traffic, because source क्या होगा इस पैकेट का? 12 dot and that destination will be what? क्या ये राउटर R2 की किसी भी IP से मैच करता है? No. So this means for R2 it is what? Transit traffic. So according to the concept of the Cisco, the transit traffic should be forwarded by what? FIB. Transit traffic should be forwarded by FIB. But here what we are going to do is we are going to configure a access list with log messages. So first let me create this topology R1, R2, and we need another router R3. ठीक है. ठीक है. On R3 we have to assign which IP? 23.2. And on R2 we have to assign which IP? 23.1. Now we have to assign what? VLAN. VLAN भी तो assign करने होंगे. So स्विच 2 के कौन से इंटरफेस को VLAN 20 में असाइन करूं? स्विच 2 के कौन से इंटरफेस को VLAN 20 में असाइन करूं? This is what? F0 by 0, right? And this is what? F0 by 1. So 0 by 1 will be connected to what? Switch 2. So only F0 by 1. So that means switch 2 0 by 2 will be assigned to what? बस एक ही इंटरफेस असाइन करना है, दो नहीं. तूने दो बात है. R3 का क्या होगा? 0 by 0. Now let's say whether he can ping R2 or not. Done. Now we have to configure some kind of static routes or default routes. Yes or no? Because this is what? 12 subnet, that is what? 23. So we will not have any kind of route. So IP route for 23 network forwarded to 12.2. And here I am going to say if you have any route for 12 dot subnet forwarded to 23.1. आप EIGR भी चला दो, OSPF चला दो, वो आपकी मर्जी. It's up to you what routing protocol you want to run to provide a connectivity from R1 to R3. R1 से R3 के लिए आपको क्या लेके आनी है? Connectivity. So let's ping from R1 to R3. हो रहा है? ठीक है. Now all this traffic is forwarded through what? FIB. सब किससे जा रहा है? FIB से. Forwarding information base. So now what I'm going to do is I'm going to create a access list. IP access list extended ICMP ACL. Permit ICMP any और क्या जनरेट कर दो? बस लॉग ही तो जनरेट करवाने थे, because log will be generated by what? CPU. And then I'm going to apply to the interface. IP access group. कर दिया लॉग जनरेट.
So now this packet is, all these ICMP packets is forwarded through what? CPU. सारा पैकेट आपका किससे जा रहा है? CPU से. Because he has to generate what? A log messages. Now it is not a packet that is forwarded through the fib, it is forwarded by the rib, जो आपका CPU forward कर रहा है. So now what I am going to do is, अब बताओ हम इस टास्क में क्या कर सकते हैं टू वेरीफाई दैट ट्रांजिट ट्रैफिक विल बी फॉरवर्डेड थ्रू दिस पाथ. हम क्या कर सकते हैं? उसको कॉल करा दो क्लास में ACL को. बट वेरिफिकेशन के नाम पे क्या करा है? लॉग जनरेट करा देंगे और क्या. लॉग जनरेट करा दो. सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, IP एक्सेस लिस्ट. तो हम टास्क में क्या करेंगे? टास्क नंबर 4, कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन विद ट्रांजिट. So what I want to say, whatever the traffic that is going to the CPU, जो भी ट्रैफिक CPU के पास जा रहा है, बट इट इज व्हाट? ट्रांजिट. आप उसके लिए क्या जनरेट करो? लॉग. ये तो ACL के लॉग है, यस और नो? IP एक्सेस लॉग्स मतलब एक्सेस लिस्ट के लॉग है. कंट्रोल प्लेन के कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, CP कंट्रोल प्लेन लॉग्स. सो व्हाट आई वांट टू से कि कोई भी ट्रैफिक दैट इज फॉरवर्डेड थ्रू दिस पाथ यू शुड जनरेट ए लॉग. कौन? किससे? इस वाले के लिए आपको क्या जनरेट करने हैं? लॉग. तो अगर मेरा ट्रैफिक सच में इज फॉलोइंग द ट्रांजिट पाथ, इट शुड जनरेट व्हाट? लॉग. अगर सच में अगर वो ऊपर, सी मैंने अभी आपको क्या बताया था, इफ यू आर गोइंग टू जनरेट एनी काइंड ऑफ log messages through ACL, that packet is forwarded to what? CPU, because CPU can generate what? Log messages. आपका CPU तो log message generate करेगा. So what I want is, I want to verify this statement. So what I'm going to do is, whatever the traffic that is forwarded through this path, you have to generate a log message. आपको क्या generate करना है? एक log message. So if the traffic is going through this path, he is going to generate a log message. If not, he is not going to generate any kind of log messages. समझे आपको कि अगर मेरा ट्रैफिक इस पाथ से जाएगा तो वो क्या जनरेट कर देगा? लॉग. अगर नहीं गया तो वो लॉग नहीं जनरेट करेगा. तो इससे मैं ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी, इफ द लॉग्स आर जनरेटेड, दैट इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ ACL विद द स्टेटमेंट ऑफ लॉग शो IP एक्सेस लिस्ट, if I am going to apply any kind of statement with the log keyword, that traffic is considered as what? Transit traffic, but it will be forwarded by what? CPU. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आया. यार डिजिटल पैड यूज करना पड़ेगा. देखो R1, this is R2 and this is R3. This is what? CPU. This is your fib. This is your adjacency table. By default, transit traffic is always forwarded through what? Fib. Because fib, the concept is forwarding information based, so I have to forward the traffic as fast as possible on the hardware speed. Now what I said is, as soon as you are going to receive any kind of ICMP packet, you have to generate a log message. आपको क्या जनरेट करना है? एक log. फिब का काम क्या है? सिर्फ forward, just to forward the traffic. The scope of fib is what? Just to forward the traffic. To generate a log, the CPU has to be डिस्टर्ब. आपको अपना CPU डिस्टर्ब करना पड़ेगा टू जनरेट ए लॉग मैसेज, बिकॉज फिब का काम सिर्फ क्या? टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक, नॉट टू जनरेट एनी काइंड ऑफ लॉग मैसेजेस. फिब इज नॉट गोइंग टू जनरेट एनी काइंड ऑफ मैसेजेस. दैट इज द टास्क ऑफ व्हाट? CPU. ठीक है. सो व्हाट आई सेड इज, एज सून एज यू आर गोइंग टू रिसीव एनी काइंड ऑफ ICMP पैकेट, यू हैव टू जनरेट व्हाट? लॉग. So now the packet flow will be changed. Now as soon as you are going to receive any kind of packet, यहाँ पे देखेगा I have to generate what? Log. So it will say I am not able to generate the log, so let me redirect that traffic to the CPU. Now CPU is going to generate a log, then is going to forward the packet to R3. इतना समझ आपको?
So now the packet flow is changed. Rather than forwarding through the fib, पहले आप fib से जा रहे थे, now you are going something like this through the CPU. Yes or no? And now we are talking about control plane security. So what I want is, I want to prove this point that if you are using the keyword of log inside the ACL, that traffic will be forwarded through the CPU. So what I said is, on control plane, I said if you the traffic is come through transit path, control plane may be different option है, transit, host and self exception. So this ICMP traffic belongs to what? Transit. Transit means what? Through the device but require special attention. Special attention में क्या आ रहा है यहाँ पे? Log. So I said if the traffic is going through the CPU and it is a transit traffic, so you have to generate a log message just to inform me कि कौन सा ट्रैफिक मेरा CPU से जा रहा है. And it is रियल इंडस्ट्री में भी हम इसको चलाते हैं to verify that what type of transit traffic is forwarded by the CPU. ऐसा कौन सा transit traffic है जो CPU से जा रहा है, so that we can sort it out. Because for this thing I am going to use what? Fib. अरे इसके लिए क्या बनाया मैंने? Fib. To forward the transit traffic, Cisco has introduced the concept of what? Fib. अरे CCNP में क्या किया था? Fib बनाया गया ना to forward the transit traffic. But now the traffic is going through the CPU. So this means something is what? Wrong. So here I want to prove my point. So for that thing, what I want to do is, I'm going to create a policy, show IP access list, just to identify the traffic. IP access list extended, कोई भी नाम दे दो XYZ. And मैं क्या चाहता हूँ, if a ICMP traffic is forwarded to the control plane, so this ACL is from the perspective of control plane. I'm just identifying the traffic and I'm going to call it inside what? Class map, CMap. Match, CMap तो पहले से ही हमारे पास, so I'm going to say class map ICMP class match access group name XYZ. Now I have identified that if ICMP traffic is forwarded to the CPU, I want to generate a log messages. So policy map ICMP policy. Class was what? ICMP class. C capital. And I want to generate just log. अब इसको ड्रॉप करवा दो, इट्स अप टू यू. मैं बस क्या जनरेट करवा रहा हूँ? लॉग. And the last step is to Control plane. apply. So control plane transit service policy input ICMP Policy. policy. Do show history. So first what I did is, first I have identified the traffic, that if this type of traffic is forwarded to the CPU, किस type का traffic? ICMP का. I want to take action. Action is what? Log. और मैंने इसको कहाँ लगा दिया? कंट्रोल प्लेन ट्रांजिट. पिंग हुआ? क्या कोई लॉग जनरेट हुआ? शो कंट्रोल प्लेन फीचर. शो रन इंटरफेस F0/1. इन में लगाई है तो इसको हम आउट में कर देते हैं. हटाई दो ना. हुए जनरेट? वो इनमें थे जब रिप्लाई आ रहा था, हमें जाते वक्त के लिए कॉन्फ़िगर किया था. सो नाउ यू आर गोइंग टू सी दीज आर द, दिस इज फॉर व्हाट? ICMP लॉग, जो ICMP पे मैंने लॉग चलाया था. एंड दिस इज फॉर व्हाट? कंट्रोल प्लेन. तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और कितने पैकेट भेजे थे? 10. So this means yes, that packet is going through the device, but it is forwarded by what?
CPU, आपका CPU इंटरप्ट हो रहा है. दिस थिंग इज क्लियर. अगला ट्रैफिक कौन सा आता है? कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन विद ठीक है. और राउटिंग प्रोटोकॉल का कितना होता है बाय डिफॉल्ट? TTL. EIGRP का तो 2 होता है. OSPF का कितना होता है? 1. भी कर लो और नॉन नेगेटिव का फिक्स दे आर्क करा चुके हैं ना यार, मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग करा दूँ. EIGRP तो नहीं होगा. EIGRP क्या मैच होगा इससे? नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट EIGRP हैज अ TTL ऑफ 2 होता है. क्या हुआ, पढ़ के नहीं आया क्या राउटिंग स्विचिंग? डिटेल नहीं पता. देखो ये रहा. सिक्योरिटी VPN R1 and now you are going to see in the case of EIGRP your TTL is always 2. अरे ये तो GRE चल रहा है. नीचे होगा. ये रहा. TTL कितना है? 2. 224.0.0.10 दिख रहा है आपको? मतलब ये किसका पैकेट है? EIGRP. EIGRP का TTL कितना होता है? 2. So now EIGRP is going to match under what? Host or self exception? EIGRP किसके अंडर आएगा? होस्ट या सेफ? होस्ट. क्योंकि सेफ एक्सेप्शन मीन्स TTL 1 और लेस देन 1, बट इट हैज अ TTL ऑफ 2. लेस देन 1 किसका होता है? जिसमें होता ही नहीं है, बट लेस देन 1 ही बोलते हैं. ठीक है. सो लेट्स मैच दिस थिंग विद व्हाट? BGP. BGP में बाय डिफॉल्ट TTL वो कितना लेता है? 1. BGP में बाय डिफॉल्ट TTL कितना होता है? 1. So let's form a BGP neighborship. Router BGP 1. Neighbor 12.1.2. R1 और R2 के बीच में क्या बना रहा हूँ? एक BGP neighborship. पता नहीं BGP के नाम से तुम्हारे मुंह क्यों झुक जाते हैं. इतना तो इजी है वो. Remote AS 2. ठीक है. Router BGP 1. This is my neighbor and I am running what? eBGP, right? This is 1 and this is what? 2. Router BGP 2. Neighbor 12.1.1. Remote AS 1. Neighborship आ गई मेरी, right? Then neighborship is what? Up. Perfect. And by default the TTL of BGP is what? 1. Is 1. Now what I am going to say, if I am receiving BGP in safe exception, drop the packets. If I am receiving BGP in safe exception, drop the packets. मतलब कि BGP का क्या होगा? TTL. BGP is coming with a TTL of 1 because in safe exception I am going to receive a packet with a TTL of 1 or without a TTL that is less than 1. Now as soon as I am going to configure this kind of policy, मेरा BGP की neighborship क्या हो जाएगी? Down. Yes or no? क्योंकि मैंने क्या बोल दिया, अगर सेफ एक्सेप्शन में BGP आ रहा है तो क्या कर दो? ड्रॉप. देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज द कांसेप्ट ऑफ TTL. चलाते ना TTL होप 3. क्या 3 सेफ एक्सेप्शन में आएगा? No. This means as soon as I am going to configure this command, my TTL is going to be increased, and now he is not going to lie under what? Safe exception. And now the BGP neighborship will come up.
मैंने क्या किया है, मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन किया है. This is R1, this is R2. By default, the router is going to send a BGP packet with a TTL of 1. He is going to receive it. Here I am going to configure a policy. If you are going to receive any kind of packet of BGP in SEF exception, drop the packet. What is the condition to receive a packet in SEF exception? TTL 1 or less TTL than 1. 1. So the BGP is coming with what? TTL 1. 1. Drop. This is SEF, this is transit, and this is host. The condition for the host is more than 1. मोर देन 1 ऐसे ही लिखते ना, नहीं ये लेस देन हो गया ना. अरे रुको, ये छोड़ो, क्यों परेशान हो रहे हो. मोर देन 1. ठीक है. द कंडीशन ऑफ होस्ट इज मोर देन 1. नाउ इफ द बीजीपी इज कमिंग विद TTL 1 इज गोइंग टू लाई अंडर सेफ, एंड सेफ पे मैंने एक पॉलिसी लगाई है, ड्रॉप द पैकेट्स. सो नाउ हियर आई एम टू से TTL आई वांट टू इंक्रीज अप टू 3. मेरे को TTL कितना करना है? 3. नाउ द BGP पैकेट इज कम विद द TTL ऑफ 3. Received by R2. R2 is going to say, let me decide whether it belongs to Ceph or host. Let me check its TTL. Its TTL is what? 3. Now it's going to come under what? Host. And now the BGP neighborship will come up. अभी तो मैंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई. Till now I haven't configured any kind of policy. So due to which my BGP neighborship is up. So now let me create a policy that if you are going to receive any kind of BGP packet, in the Ceph exception, drop the packet. Or Ceph exception means it is coming with a TTL of 1. So IP access list extended my BGP. Permit TCP or UDP? TCP 179. और कई बार BGP का सोर्स पोर्ट भी क्या हो जाता है? 179. So just to make sure, एक बार सोर्स मैच करा दिया, एक बार डेस्टिनेशन पोर्ट मैच करा दिया. NTP भी इसमें भी तो होता है. NTP एनटी में हाँ दोनों होते हैं. द नेक्स्ट स्टेप, क्लास में क्लास मैप, राइट. क्लास मैप सीमा BGP बना. सीमा तो होगा. सी मैप पहले से है. क्लास मैप BGP क्लास. ठीक है. क्लास मैप इज BGP क्लास. मैच एक्सेस ग्रुप माई BGP. अब लग रहा है राउटिंग स्विचिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी. तो क्या बात है. Then this policy is configured. यहाँ तक कोई डाउट है? फर्स्ट आई आइडेंटिफाई द ट्रैफिक, दैट द ट्रैफिक इज ऑफ दिस इज कॉल्ड BGP. मैंने उसको पहले बता दिया, दिस इज कॉल्ड व्हाट? BGP. इफ द ट्रैफिक इज कमिंग ऑफ TCP, डेस्टिनेशन पोर्ट कैन बी 79 और सोर्स पोर्ट कैन बी 79. देन आई कॉल इनसाइड व्हाट? क्लास में क्लास में. Next step, पॉलिसी policy map, right? Policy map, BGP policy, क्लास BGP क्लास. and I want to. थक जाएगा ये राउटर, कितने लॉग जनरेट करूँ इससे. ठीक है. सो इन द पॉलिसी मैप आई सेड, और कहाँ पे अप्लाई करना है इसको मेरे को? कंट्रोल प्लेन, सेफ एक्सेप्शन, सर्विस पॉलिसी इनपुट, BGP पॉलिसी. शो कंट्रोल प्लेन फीचर्स. अब लग रहा है कुछ सिक्योरिटी लगी है इस राउटर पे. सो ऑल द फीचर्स आर, ट्रांजिट के लिए भी हो गया, सेफ एक्सेप्शन के लिए भी हो गया, और हो चुका है हमारा
होस्ट के लिए भी डू शो हिस्ट्री, दिस वाज माय कॉन्फ़िगरेशन टिल नाउ। आप इसको देख सकते हो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। So first I have identified what? BGP through what? TCP 179. Then I call inside what? Class map. Policy map में मैंने क्या कह दिया? Drop. ऐसे नहीं जाती। Clear IP BGP star. हो गई। अब देखते हैं क्या ये आ पाएगी या नहीं। सर IBGP का टीटीएल क्या होता है? उसने बताया क्या क्वेश्चन है OSPF और EBGP, उसने बोला था कि राउटिंग वाले सर से पूछ। शो कंट्रोल प्लेन काउंटर्स। आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज कॉल्ड द, यहाँ से आप समझ सकते हो शो कंट्रोल प्लेन काउंटर्स कैसे। नाउ यू आर गोइंग टू सी एग्रीगेट पाथ इज फॉर व्हाट? कंट्रोल प्लेन पुलिस, एंड दिस इज फॉर व्हाट? कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन। अब इनको ऐड करो एक बार आप, ये कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन है, इसको ऐड करो। 6 8 + 6 4 5 6 7 8 9 9 0 सेम है, यही है जितना ही है 10994। बिकॉज आपके इतने ही पैकेट सीपीयू तक गए। इफ यू आर गोइंग टू लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्रोल प्लेन पुलिस, यू आर गोइंग टू सी दैट मच ऑफ पैकेट्स आर फॉरवर्डेड टू द सीपीयू। But if you are going to look from the perspective of control plane protection, you are going to see the traffic that it belongs to the device 648. होस्ट के लिए हमने क्या कॉन्फ़िगर किया था? टेलनेट, राइट? एंड आई सेड व्हाट? तो इसलिए मेरे 8 पैकेट क्या हो गए? ड्रॉप। ट्रांजिट के लिए क्या मैंने ड्रॉप किया था? नहीं, वी जस्ट जनरेट व्हाट? लॉग। दैट्स व्हाई द पैकेट्स आर नॉट ड्रॉप। और मैंने 10 पैकेट ही भेजे थे, यस और नो, इफ यू रिमेंबर दैट थिंग। सो आई हैव 10 सेफ एक्सेप्शन, और मेरे पैकेट्स ड्रॉप होने स्टार्ट हो गए। अगर बीजीपी और पैकेट भेज रहा होगा, नाउ आई एम गोइंग टू सी द काउंटर इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय सम नंबर 58 कि हाँ सच में। और क्या बीजीपी की नेबरशिप अब आई है? नहीं, अब तक नहीं, क्योंकि जो पुलिस लगी हुई है, मेरी जो प्रोटेक्शन लगी हुई है वो यहाँ पे है। सो इज गोइंग टू शो मी ओनली हेयर, क्योंकि प्रोटेक्शन ड्रॉप कर रहा है। अगर आप पुलिस लगाओगे तो पुलिस के ड्रॉप बढ़ेंगे, इसके नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो ड्रॉप हुआ है वो किसकी वजह से हुआ? पुलिस की वजह से हुआ था। यहाँ पर ड्रॉप किसकी वजह से हुआ? प्रोटेक्शन। नाउ द पैकेट्स आर इंक्रीजिंग, यस और नो? तो फ्रॉम दिस थिंग आई कैन वेरीफाई दैट यस द पैकेट्स आर ड्रॉप। बीजीपी के पैकेट क्या हो रहे हैं? ड्रॉप। सो टू मेक अ बीजीपी नेबरशिप वी हैव टू बाईपास फ्रॉम द सेफ एक्सेप्शन, और बीजीपी को किसके अंदर लाना है? वी हैव टू ब्रिंग इट इनसाइड द होस्ट। So we have to increase the TTL. So route neighbor 12.1.2 TTL security hope 3. Router BGP2 neighbor 12.1.1 TTL security hope 3. Clear IP BGP star and wait for some time. आ गई? बिकॉज नाउ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सेफ एक्सेप्शन। ये किसका बन चुका है अब? होस्ट का। अब मैं आपको 1 मिनट दूंगा, आपको किसी को बताना नहीं अबाउट द न्यू फीचर्स ऑल्सो। द न्यू फीचर इज व्हाट? पोर्ट फिल्टरिंग। पोर्ट फिल्टरिंग, ठीक है।
पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लेट मी शो यू समथिंग। क्या हो रहा है ये? अरे तारा ला दिया किसी ने तो लैब हो रही है। उस दिन पता ट्रंक भी वो चल रहा है तो तारे ला दूसरी बोला आ गया। देखो पिंग डाउन ही आ रहा है अब जीरो जीरो डाउन ही हो रहा है। एक बार और देख लेते हैं। अब अप है तो अप ही रहने देते हैं, अब डाउन हो गया तो हम जीएनएस पे आ जाएंगे। अप है, ठीक है। नाउ लेट्स पिंग 23.2, पिंग 23.2। यस आई कैन पिंग, यस और नो? ये फिर डाउन हो गया। डाउन जरूरत है हमें R2 और R3 के साथ, कर ले उसको, खुश होने तो उसको भी, ठीक है। नाउ यहाँ पे वी आर गोइंग टू रन ए कमांड दैट इज कॉल्ड debug। नहीं बन रही बात। हाँ, debug IP TCP ट्रांजैक्शंस। हम एक कमांड चलाएंगे, debug IP TCP ट्रांजैक्शंस, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस कमांड एंड व्हाई वी आर रनिंग दिस कमांड। So the command is debug IP TCP transactions. Let's see. Telnet 23.2 and I want to hit on port number 8000. क्या ये 8000 के listen कर रहा है R2? No, he's not listening for 8000. क्या आ गया? Connection refused. यहाँ पे भी एक command चला देते हैं, debug IP TCP transactions. And let's hit it again. ठीक है, अनडिबग ऑल। लेट्स सी अबाउट द लॉग मैसेजेस। ये आपके CCNA RNS लेवल का है। नाउ यू आर गोइंग टू सी, एज सुन एज यू आर गोइंग टू इनिशिएट अ पैकेट फॉर विच पोर्ट 8000, क्या वो उसके लिए लिसन कर रहा था? नहीं, बट ही स्टार्ट सेंडिंग अ पैकेट बाय व्हाट? सेंडिंग सिन। क्यों? बिकॉज इट इज व्हाट? TCP थ्री वे हैंडशेक इज गोइंग टू परफॉर्म। सबसे पहले क्या होगा? थ्री वे हैंडशेक। यार ये स्क्रॉल ऑप्शन आता था ना एक, इसको कॉपी कर लो। पेंट, वहाँ वो पोर्ट परेशान कर रहा है, यहाँ ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो हम उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आई एम सेंडिंग अ सिन पैकेट, राइट? आई एम सेंडिंग ए सिन पैकेट। आई एम गोइंग टू गेट व्हाट? सिन प्लस, but the router is going to check whether I'm listening for that port or not. Sin plus एक three way handshake तभी बनाएगा whether he is listening for that port or not, but he was not listening for that port, so he sent a packet remote sent what? Reset. Yes or no? He sent what? Sin packet and the destination port was what? 8000. बट माई राउटर वॉज नॉट लिसनिंग फॉर वॉट? 8000। क्या मेरा राउटर 8000 के लिए लिसन कर रहा था? नहीं, ही वॉज नॉट लिसनिंग फॉर 8000, सो ही सेंड वॉट? रीसेट। दैट रीसेट द कनेक्शन। यस और नो? ये समझ आया आपको? दिस इज R1 फॉर एग्जाम्पल, दिस इज R2. By default he is listening for port number 23. I was hitting on port number what? 8000. It was a TCP packet, so he has to send what? Sin plus the port destination port was what? 8000. R2 receive it. He said, okay, before going to three-way handshake, let me check whether I am listening for 8000 port number or not. No, I am not listening. I am just listening for 23. So let me set reset the connection. And now you are going to see a syslog message in the debug.
that is telling you connection closed, remote, sent, reset. इतना समझ आया? इसमें एक दिक्कत है. दिक्कत क्या है? What if the attacker is sending thousands and thousands of packet on the random port number? This is my R1, this is my R2, this is the CPU, this is the fib, this is the adjacency table. R2 is sending the packet destined to the CPU, destined to the device. As soon as it is going to receive by the fib क्या कहेगा? Okay, this is what? This is destined to the box. तो मैं तो handle नहीं करूँगा. Who is going to handle? CPU. Let me forward the CPU. Now the CPU is going to check whether I am listening for that port number or not. No, I am not listening. Let me create a packet. मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ. The packet is created by what? CPU. CPU तो आपके packet create करेगा. Whether it is a log message or any kind of reset message, that will be created by what? CPU. So in this case, the CPU is going to create a packet of reset and is going to forward it to R1. Yes or no? अब हुआ ये, he is sending thousands and thousands of packet to R2 on random port, maybe 5000, 6000, because हमारे पास कितने पोर्ट नंबर होते हैं? 65535. So he is sending thousands and thousands of packet to the box. तो is going to handle CPU. To the box को कौन हैंडल करेगा? CPU. So my CPU utilization will be increased. आपका अफेक्ट हो रहा है CPU. इसने पता चला 1 लाख पैकेट भेज दिए. So he has to send 1 lakh reset packet to reset the connection. So now we are going to talk about the concept of port filtering. पहले समझे हम क्यों पढ़े port filtering? That if I am sending any kind of packet, maybe 8000, 6000, for that the router is not listening, the CPU has to involve and generate what? A reset message. तो आपका CPU involve होगा और क्या भेजेगा? Reset. This was the problem that we were facing. हम ये problem को face कर रहे थे. तो इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया, पोर्ट फिल्टरिंग. प्रॉब्लम समझ आ गई? वी आर सेंडिंग अ पैकेट टू व्हाट? CPU. एंड द CPU इज डूइंग व्हाट? ही इज सेंडिंग व्हाट? रीसेट. टू क्रिएट ए पैकेट फॉर द रीसेट ही हैज टू यूटिलाइज सम काइंड ऑफ CPU. आपका CPU इन्वॉल्व हो रहा है उसमें टू क्रिएट व्हाट? ए रीसेट पैकेट. तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन बनाया गया? दे सेड व्हाट, ध्यान से समझना, थोड़ा सा अजीब है, अजीबो गरीब है. This is your router, this is your CPU, this is your fib and this is your adjacency table. Fib बाहर में जाए, adjacency हमें कोई मतलब नहीं है because it is to the device. तो adjacency का कोई खास लेना देना नहीं है. तीन प्लेन होते हैं कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन में. सॉरी, 3 सेपरेट लॉजिकल पाथ. द फर्स्ट वन इज होस्ट, ट्रांजिट एंड सेफ एक्सेप्शन. तो हम किसकी बात करें अभी? होस्ट की. ट्रांजिट इज नॉट टू द डिवाइस, सेफ एक्सेप्शन इज ऑल्सो नॉट टू द डिवाइस. क्या टेलनेट और एसएसएच सेफ एक्सेप्शन में आएगा कभी? नहीं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? होस्ट. द सॉल्यूशन दैट मेड इज, इनिशियली जितने भी मेरे ओपन पोर्ट्स है, मीन्स ऑन द विच द राउटर इज लिसनिंग फॉर द कनेक्शन. ओपन पोर्ट्स हम उनको कहते हैं ओपन, जिसके लिए राउटर लिसन कर रहा है, इज 23. आप देख भी सकते हो. शो क्या दिखाओ? कंट्रोल प्लेन. मुझे CPU देखना है. CPU में जो लॉजिकल पाथ है वो कौन सा देखना है? होस्ट. और होस्ट के अंदर क्या देखना है? ओपन पोर्ट्स. I'm listening for telnet. So this is a dynamic database that is created by the CPU. कौन बना के रखता है इसको? CPU. So the concept of open ports is maintained by what? CPU. And the command to check the database is show control plane host open ports. So this is the command through which you can check the database.
और इसको कौन मेंटेन करता है? CPU. Now the concept is going to say, rather than CPU तो मेंटेन करेगा ही, rather than forwarding the packet to the box, what I'm going to do is I'm going to create a copy of this open ports. Fib rib याद है सबको? Fib is what? A replica of what? Rib. ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे? I'm going to copy the concept of open ports to the fib. These are the ports that the router is listening right now. Maybe 23. Let's take example 22 or 20. This is a database. So every time when the packet is received by the fib is not aware about okay whether the router is listening for this port or not. So he's going to forward it to what? CPU. उसको थोड़ा पता है कि कौन listen कर रहा है, किसके लिए listen कर रहा है. So but now what I'm going to do is I'm going to update my database and I'm going to give a copy of this database. एक copy जैसे RIP क्या दे देता है, एक copy दे देता है. I'm going to give a copy to the fib. 23, 22. So now rather than forwarding it to the CPU, now I have informed the fib that okay I'm listening for only port number 23, 22 and 20. When the packet is received by the fib is going to send, और कितना पैकेट भेजा था हमने? 8000 था ना? 8000. Now fib is going to receive the packet. Is going to say that is to the device. Let me check the destination port. Destination port कितना है? 8000. And the database that I have is 23, 22 and 20. तो क्या CPU इसके लिए listen कर रहा होगा? नहीं. I'm going to. क्या फिर पैकेट जनरेट कर सकता है? नहीं. That is the task of what? CPU to generate the packet. So is going to silently drop the packet. क्योंकि फिब इज व्हाट? फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस. उसका काम थोड़ा ना पैकेट जनरेट करना. फॉर दैट वी हैव व्हाट? CPU. सो इन द कंसेप्ट ऑफ द पोर्ट फिल्टरिंग आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट माई डेटाबेस ऑफ ओपन पोर्ट्स फ्रॉम द CPU टू द फिब. फिब के पास मैं क्या ले आऊंगा? ओपन पोर्ट्स. कि these are the open ports that I am listening, and now when the packet is received, fib is going to check its database. देखो कैसे कंसेप्ट समझ आया? क्या प्रॉब्लम थी पहले? दैट वट एवर द पैकेट दैट इज डेस्टिन्ड टू द बॉक्स विल बी फॉरवर्डेड टू व्हाट? CPU. कोई भी पैकेट होगा वो किसके पास जाएगा? CPU के पास. Then CPU has to entertain that packet and he has to generate what? Reset. If it is not listening for, he has to generate what? Reset. So CPU utilize हो रहा था. So now what we did is we are going to replicate the information of open ports from the CPU to the fib. Now as soon as the packet is received by the fib, is going to check the destination port. If the destination port is going to match with this database, he is going to allow. और अगर नहीं होगी तो वो क्या कर देगा? उसको साइलेंटली ड्रॉप. बिकॉज फिब कैन नॉट जनरेट अ पैकेट, तो वो रीसेट नहीं मिलेगा इस केस में. अगर CPU तक जाएगा तो देन ओनली यू विल गेट अ रीसेट पैकेट. बट नाउ इन दिस केस यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनी काइंड ऑफ रीसेट पैकेट. इसलिए मैंने यहाँ पे डिबग करके दिखाया था कि बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस फीचर यू आर रिसीविंग व्हाट? ए रीसेट पैकेट. अगर मैं इस फीचर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा तो यू आर रिसीविंग व्हाट? रीसेट. Connection refused, remote, sent, reset. But after implementing this concept of port filtering, now you are not going to receive any kind of reset packet because that packet is not forwarded to the CPU. वो किसने ड्रॉप कर दिया? फिब ने. इतना फिब रिप तो तुमने CCNP में भी नहीं सुना होगा. लेयर 3 में लगता है मैं भी ना CCI RNS की लैब दे दूं, बट जैसी लेयर 3 खत्म होती है छोड़ना यार, इतना नहीं आता. क्रिश्चियन ने भी तो दी है. उसने पहले सिक्योरिटी की है, बाद में राउटिंग स्विचिंग की दी है. इसने क्रिश्चियन. हाँ वो सिक्योरिटी का बंदा. ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम एक कंसेप्ट लेके आना. अब कंसेप्ट समझ आ गया आप सबको? कॉन्फ़िगरेशन करें. सो लेट्स परफॉर्म द कॉन्फ़िगरेशन.
that we have to replicate our data from the rib to the fib, that these are the ports that I'm listening, and if I'm not listening silently it will going to drop. तो इसमें जो क्लास में बनेगी ना वो कुछ स्पेशल टाइप की बनेगी. मैं आपको दिखा देता हूँ एक लॉजिकल डायग्राम, शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिले उससे. हाँ ये रहा. यहाँ से पैकेट आ रहे हैं आपके. कंट्रोल प्लेन पुलिस कहाँ लगेगी? एग्रीगेट पाथ पे. दिस इज व्हाट एग्रीगेट. सो वट एवर द ट्रैफिक दैट इज फॉरवर्डेड टू द सीपीयू, द कंट्रोल प्लेन पुलिस इज गोइंग टू अफेक्ट. And now if you are going to implement control plane protection, it is going to divide the packet into different path. ये आपका क्या हो गया? self exception. This is what? transit. And this is what? host. में आप देखोगे आपके पास दो बॉक्स एक्स्ट्रा है. port filtering, क्यू थ्रेशोल्ड because host means what? पूरा डिवाइस. पोर्ट फिल्टरिंग कब काम करना चाहिए? जब पैकेट क्या हो? टू द डिवाइस. अब ऐसे थोड़ा होगा कि R1, R2 और R3 के लिए कोई ट्रैफिक जा रहा है, ये ड्रॉप कर रहा है, बोल दे कि वो तो लिसन ही नहीं कर रहा, उसको कैसे पता चलेगा? सो दैट पैकेट इज ओनली टू द डिवाइस. सो यू विल गेट द फीचर ऑफ पोर्ट फिल्टरिंग व्हेन द ट्रैफिक इज गोइंग टू द डिवाइस इन द केस ऑफ व्हाट? होस्ट. फिर हम कल यहाँ पे आएंगे, इनपुट क्यू BGP कल फिर आएगा. सो पैकेट इज फॉरवर्डेड, फिब लुकअप हुआ, वो बोला नहीं कर सकता, मेरे लेवल का नहीं है ये चीज़. सो इज गोइंग टू फॉरवर्ड इट टू द CPU. इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल प्लेन पुलिस, वट एवर द ट्रैफिक दैट इज फॉरवर्डेड टू द CPU इज गोइंग टू अफेक्ट. बट इन द केस ऑफ कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन इट हैज़ अ सेपरेट 3 इंटरफेसेस. लॉजिकल इंटरफेसेस हैं, फिजिकल नहीं है. फिर तब यहाँ से जाके यहाँ पे, यहाँ से जाके यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? CPU. इतना तो यार राउटिंग में भी ठीक है. चलो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. लेट्स स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन. क्लास मैप टाइप किस टाइप की होगी? पोर्ट फिल्टर की. कोई भी नाम दे दो. सी मैप. R3 है तो इससे कभी मैंने अभी तक बनाया नहीं है, सो आई कैन गिव एनी नेम. सी मैप. मैच क्लोज पोर्ट्स. मैंने क्या मैच करा दिए? सारे क्लोज पोर्ट, जिसके लिए मेरा राउटर लिसन नहीं कर रहा. देन आई एम गोइंग टू से पॉलिसी मैप टाइप पोर्ट फिल्टर. क्या बता दिया? पी मैप. क्लास वाज व्हाट? एंड आई सेड व्हाट? ड्रॉप. सीधे सीधे क्या कर दो? ड्रॉप. एंड कंट्रोल प्लेन होस्ट सर्विस पॉलिसी टाइप इनपुट डू शो हिस्ट्री. दिस वाज योर कॉन्फ़िगरेशन. बहुत छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन थी. क्लास में बनाओ और क्या मैच करा दो? सारे क्लोज पोर्ट्स. इफ यू आर रिसीविंग एनी काइंड ऑफ पैकेट दैट इज डेस्टिन्ड टू व्हाट? क्लोज पोर्ट्स. आप उसको अपने लेवल पे ही क्या कर दो? ड्रॉप. एंड नाउ वो फिर बोलेगा कि मुझे नहीं पता क्लोज पोर्ट्स क्या. नाउ ही इज गोइंग टू सिंक द डेटाबेस फ्रॉम द CPU टू द फिब. फिब को थोड़ा पता है क्लोज पोर्ट्स कौन से और कौन से ओपन पोर्ट्स है. सो नाउ इज गोइंग टू सिंक दैट डेटाबेस फ्रॉम द CPU, और उसके पास आ जाएगा कि ओपन पोर्ट्स में कौन है? 23. And now is going to match. If the traffic is not belongs to 23, I am going to do what? Drop the packet. और कहाँ लगाया मैंने ये? होस्ट में. ठीक है, यही तो मैं चाह रहा था कि जो भी क्लोज पोर्ट के लिए ट्रैफिक आए, मेरा राउटर क्या कर दे? इज गोइंग टू ड्रॉप दैट पैकेट. सो व्हाट आई सेड इज मैच ऑल द क्लोज पोर्ट्स. इफ यू आर नॉट लिसनिंग फॉर दोज पोर्ट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉप. और अब हम क्या करते हैं? लेट्स परफॉर्म दिस टास्क वेरिफिकेशन.
debug IP TCP transactions again, ठीक है। यहाँ से ना आपको एक नई चीज़ और सीखने को मिलेगी, शायद आपको पता हो या शायद ना पता हो। अरे 23 के लिए तो वो लिसन कर ही रहा है। लेट्स हिट ऑन द रैंडम पोर्ट 8000। ये शायद आपको पता हो या ना पता हो, बट if I'm sending a SYN packet and he's not replying my SYN packet, I'm going to try 3 more times with the duration of 4000 milliseconds, 8000 milliseconds, 16000 milliseconds. क्या कोई रीसेट आ रहा है? नहीं. He's just sending the SYN packet. He's silently dropping those packets. तो लिखा क्या गया? Remote host not responding. I am sending a SYN packet. If he's not going to reply, I'm going to start again with a timeout of what? 4000 means 4 seconds. I'm going to send SYN packet number +1. Then I'm going to wait for 4 seconds. No, I'm not receiving any kind of SYN packet. Then I'm going to try again with of 8 seconds. SYN +1. And the last is of 16. टोटल कितने SYN पैकेट गए? 4. 1 2 3 4. शायद आपको पता हो या ना पता हो, बट यहाँ से चीज़ें पता चल गई। मेरे को भी याद नहीं रहती है चीज़ें। एंड शो कंट्रोल प्लेन होस्ट काउंटर्स, सॉरी होस्ट के लिए भी 4 पैकेट भेजे थे ना SYN के। सो यू आर गोइंग टू सी हियर 4 पैकेट्स आर ड्रॉप। कोई रीसेट नहीं है, दिस मीन्स दैट पैकेट वाज नॉट एंटरटेन बाय सीपीयू। सीपीयू तक तो वो बात गई नहीं, दैट वाज द ड्रॉप्ड बाय द फिब ओनली। क्योंकि फिब के पास एक होता है ना नल, कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर जाके कोई वापस नहीं आता। नल जीरो होता है। हाँ वही, बस उसके अंदर गए वो ब्लैक होल। ब्लैक होल से याद है, बीजीपी में भी तो होता है। कभी देखा है ब्लैक होल ट्रिगर इन बीजीपी? ना ना इतना नहीं इतना पढ़ाई नहीं है मुझे। क्या पढ़ते हैं? तो पढ़ाई नहीं है, अब क्या होता है? तो पढ़ लो खुद। पढ़ेंगे, वो जरूरत पड़ेगी तो पढ़ लेंगे। हो गया ना सर? आरटीपी रिमोट वो तो ट्रिगर, reliable हाँ transfer आरटीपी, आरडीबी होता है वो, आरटीबी रिलायबल आरटीपी सुना है। रिमोट अपन ने तो वही आरटीपी, ट्रिगर ब्लैक होल ये भी दूसरा है। बीजीपी में। इसको आरटीएच भी कहते हैं हम, आरटीएच, रिमोट ट्रिगर ब्लैक होल।